أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عندنا وما يذكر إلا أولو الألباب. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. الف لام میم یہ حروف مقطعات انہوں آکھیا ہوا قرآن کریم دے یہ حروف جڑے اکثر سورتاں دی ابتدا وچ سورہ آل عمران شروع ہوندی مدنی سورتاں چوں ہے اور اس نے جڑے پیچھے کفر و ایمان اور حلت و حرمت دی بحث چلی ہے اسے گل نو اگاں جاری رکھتے ہویا زیادہ جڑی بحث اس صورت وچ ہوندی کافراں دے نال کس طرح دے تعلقات اور معاملات کس طرح ہونے چاہیے تقریباً اکثر وہ معاملے زیر بحث ہونے. الف لام میم حروف مقطعات جڑے بیشتر صورتاں دے شروع چ ہوندے یہ انہاں دے معنی جڑے نے اللہ جل شانہ جانے یا اللہ دا رسول جانے. علماء حق کے مطابق ایک راز ہے اللہ اور اللہ دے نبی دے درمیان. انہاں سارے تے ایمان آنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح باقی قرآن کریم تے اور انہاں نے پڑھنے دے تلاوت کرنے دیاں برکات اسی طرح جس طرح باقی قرآن دی تلاوت دیاں برکات ہیں. انہاں دی مثال ایسی ہے کہ جیسے طبیب کوئی دوا دینا تو مریض واسطے یہ جاننا ضروری نہیں کہ اس دے وچ کیڑی دوا شامل ہے اس دے اجزاء کے. اگر وہ دوا نو استعمال کردا اللہ اس میں شفا دینا دوا اپنا کم کر دی ہے. انہاں دی تلاوت اور انہاں دی ایمان دے نال وہ برکات ہر ایک نو نصیب ہونیاں. ہر واسطے یہ ضروری نہیں کہ انہاں دے وچ کی حکمت ہے وہ جاندا ہوئے. یہ اللہ دے رسول دے درمیان یا راسخون فی العلم وہ لوگ جنہاں نو راسخ علم حاصل ہے یعنی اخص الخواص جنہوں اللہ کریم نے علم لدنی یعنی اپنے کوڑو علم عطا کیتا اور با اتباع نبوت جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے قلب اثر دے خزانے دے خوش اچین یعنی بہت اللہ دے خاص لوگ جنہوں اللہ دست دیندا او جان دین اور انہاں دا جاننا بھی انہاں دی ذات تک ہوندا. دوسرا کوئی بندہ انہاں کوڑو انہاں دے مفاہیم پوچھنے دا یا انہاں اگر پوچھے تو سمجھنے دا مکلف نہیں. جڑی گل اللہ نے حکمت اپنی بالغہ دے نال بھیت رکھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی تشریح نہیں فرمائی کسی دوسرے دا یہ مقام نہیں کہ اس سے گل کرے. اللہ لا الہ الا ہو اللہ ہے اور اس تو علاوہ کوئی ایسا نہیں جس کی عبادت کی جائے. اللہ ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ہستی نہیں. کوئی دوسرا اپنا وجود قائم نہیں رکھ سکتا. کوئی دوسرا اپنے زور تے اپنے آپ نو قائم نہیں رکھ سکتا. دوسرے دا وجود اللہ دے قائم رکھنے نال قائم ہے
तो जिसले खुद अपनी जात च मोहताज हैं तो दूसरा उन्होंने इबादत के करसी दूसरे की मदद करने की अहलियत ही नहीं रखते। अल्लाह अल हई अल कयूम है। अल्लाह हमेशा तो है, हमेशा वास्ते अल हई है, हकीकी जिंदगी अल्लाह की हयात है जिसकी कोई इब्तदा कोई इंतहा नहीं। हकीकी क़याम और हकीकी जड़ा है कायम रहना ये अल्लाह की ज़ात नूं ज़ेबा जड़ा खुद अपनी ज़ात के नाल कायम है, किसे दा मोहताज किसे दी मदद नाल कायम नहीं। बाकी कायनात दा हर फर्द हर जर्रा उसदे कायम रखने नाल कायम है, उसकी दिती हुई हयात नाल जिंदा। और ये वो हकायक कि जेड़े आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लैके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने अल्लाह के मुकद्दस बंदे, अल्लाह के प्यारे बंदे, अल्लाह के मुकर्रब नबी और रसूल होए, सब ने ये गल आखी। यानी एक दलील नकली अल्लाह करीम ने नाल इरशाद फरमाई, और दलील नकली ये है कि दुनिया च बेहतरीन लोग अल्लाह के नेक पाकबाज सच्चे और अमानतदार लोग जिन्हों की नेकी और अमानत और दयानत से उन्होंने बदतरीन दुश्मन भी गवाह। काफरा ने भी जिन्होंने अमानतदार जरूर मन्या, वो अल्लाह दियां पाकीज़ा हस्तियां जिहड़े नबुव्वत नाल सरफराज होए और आदम अला नबी ना तो लैके हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कमो बेश 1.25 लाख या इस तो भी ज़्यादा या कमो बेश जी एक अंदाजन तादाद दसी वेंदी 1.25 लाख अंबिया अगर दुनिया तशरीफ लेन, हर नबी इस हकीकत की तरफ दावत है। इतनी मुकद्दस जमात इतनी तवील मुद्दत तक एक गल ते मुतफिक इस वास्ते नकलन भी एक गल बिल्कुल सच्ची है। नज़ल अलैकल किताब बिल हक़्क़ मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व अंज़ल तौरात वल इंजील मिन क़ब्ल हुदन लिन्नास वल अंज़ल फ़ुरक़ान। आप ते किताब नाज़िल फरमाई गई बिल्कुल हक दे नाल, और ये तस्दीक कर दी है पहलियां किताबां दी, इससे दावत दी जड़ियां पहलियां सारियां किताबां ने दी है कि अल्लाह वाहिद है, ला शरीक है, माबूद बरहक है, और उसकी तौहीद ते ईमान आना ही ईमान की बुनियाद है। फिर तौरात नाजिल हुई, अंजील नाजिल हुई, इस तो पहले जड़ियां किताबां आसमानी नाजिल हुई, सारियां किताबां ने सारे नबियां ने सारे रसूलों ने ये दावत दी अल्लाह की तरफ, और ये सारियां हुदल लिन्नास अपने ज़माने इंसानियत की हिदायत की तरफ इन्हें बुलाया। नेकी की हिदायत होती है, किसी भी काम नूं करने का सही तरीन तरीका हुदा होगा। कुरान करीम ने या तौरात ने या इंजील ने उन्होंने अपने ज़माने जो तरीक़ेकार दसिया जिंदगी गुजारने का, वो एक बेहतरीन तरीक़ेकार है और सब तो आसान है। कुरान करीम ने जो ज़ाब्ता हयात अता फरमाया, जिंदगी के हर काम का तरीका दस दिता, सब तो बेहतरीन तरीका उस काम के करने का वही है जो किताब अल्लाह ने दसिया, और वो दूसरे तरीके नालों आसान भी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिल्लाहि लहुम अज़ाबुन शदीदुन वल्लाहु अज़ीज़ुन ज़ुन्तिक़ाम। और इतनी बड़ी सदाकत जिसते इतनी बड़ी जमात पाक बाज़ां दी और अल्लाह दे सच्चे बंदे दी मुत्तफिक के, अगर उसकी कोई तकजीब करदा, उसका इनकार करदा तो कितना बड़ा जुर्म है। ज़रा खुद अंदाज़ा ला लो कि जिसते अल्लाह के इतने नबी, इतने रसूल, इतने मुकर्रब बंदे और इतनी इंसानियत का जड़ा माहसल होने अम्बिया और रसूल, और इतनी पाकबाज जमात जिस हकीकत, और फिर वो हकीकत अपने वजूद कायम है और साढ़े सारे वजूद भी उसनों साबित कर रहे। फिर उसका इनकार जिस बंदे ने किया, ये दावत है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और जिन्होंने इसका इनकार किया उन्होंने वास्ते बहुत दर्दनाक अज़ाब है। कि दुनिया के दो ही कौमां ने, को जिन्होंने दावत नबुव्वत का इकरार किया वो मुसलमान कहलाए, मनने वाले, तस्लीम करने वाले। जिन्होंने इनकार किया वो काफिर कहलाए। दुनिया के बुनियादी तौर पर दो कौमां, एक मुसलमान दूसरे काफिर। अगों उन्होंने विच अगर कोई फिरके बनियां ग्रोह बनियां तो रही रहन, लेकिन बुनियादी तौर पर
दो नज़रिए दुनिया ते, दो कौमान मोमिन और काफिर, दो कौमी नज़रिए, और जिन्होंने इतनी बड़ी सदाकत का इनकार किया उन्होंने वास्ते इतना ही बड़ा अल्लाहुम अज़ाबुन शदीद, जितनी बड़ी सदाकत, जितने बड़े उसके सबूत, जितनी बड़ी उससे दलील दित्तियां गईयां, जिन्होंने इनकार किया उन्होंने अजाब भी इतना ही शदीद हो सी। और अल्लाह गालिब है और अल्लाह बदला लैन वाला, अल्लाह करीम कादिर है बदला लैन ते, और हर चीज़ ते वो गालिब है, हर शय उसके दस्ते कुदरत विच। वो ऐसा बारीक बीन है, इन्नल्लाह ला यख्फा अलैहि शैउन फिल अर्दि वला फिस समा, आसमाना और ज़मीना दे विच कोई ज़र्रा उसदी इल्म चो बाहर नहीं, उसदी निगाह चो बाहर नहीं, कोई शय उसदे इल्म आली चो मख्फी नहीं। हर ज़र्रे दी हकीकत, हर ज़र्रे दे सारे आवाल, इंसानी इल्म महदूद होंदा, असी किसी शय दे बारे अगर जानते भी हैं, बड़ा दावा करते हैं, तो बाज़ औकात सिर्फ उसका वजूद सानू नज़र आउंदा तो असी बड़े खुश हो गए हैं, या उसकी एक खसूसियत असी दरियाफ्त कर लेने हैं तो बड़े खुश हो गए हैं कि जी साढ़े को बहुत बड़ा इल्म है। लेकिन वो ज़ात ऐसी है कि हर ज़र्रे दियां कायनात दे विच जितने एटम, जितने ज़र्रात मौजूद हैं, ज़मीना आसमाना दे विच जो कुछ मौजूद है, और अल्लाह तो इलावा जितनी मखलूक है, उस सारी मखलूक दे हर ज़र्रे दी हर खसूसियत दा हर तरह दे नाल वो वाकिफ है और उसनू इल्म है। तुसीं अंदाज़ा कर लो, वही ज़ात है, वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम कैफ़ यशाअ, जैसा चाहता ऐसा शिकमे मादर के अंदर तुहानू बना देगा। यानी ऐसा कारीगर है, ऐसा कादिर है, ऐसा आगाह है कि खुद जिस वजूद के अंदर ही वजूद तरबियत पा रहा, उसको पता नहीं कि मेरा बच्चा कैसा होएगा। बहुत अजकल इस पर बहस होती है कि वो जी अल्ट्रासाउंड किया तो पता लग गया वह बच्चा ये बच्ची। पहली गल तो ये कि अल्ट्रासाउंड भी कई दफ़ा झूठ बोलता, ये बच्ची दस दिन तो बच्चा पैदा होगा। दूसरी गल ये है कि अल्ट्रासाउंड ने अगर वाकई हकीकत जान ली तो ये कुछ जाना है ना वह बच्ची है या बच्चा, मेल है या फीमेल, इस तो अगे उसकी शक्ल कैसी हो सी, उसे अकल कितनी हो सी, उसकी उम्र कितनी हो सी, उसका मिजाज कैसा हो सी, वो मोमिन हो सी कि काफिर हो सी, उसका शऊर आगाही का जोड़ा है मायार हो के कितनिया चीज़ां ने कि इंसान के बारे वो क्या वो अल्ट्रासाउंड सारिया गल्लां दस सकदा? अल्लाह सब जानदा। ये तो इंसानी इलम का जोड़ा है ये अजीब पहलू है कि थोड़ी जी शय सानू मिलती है तो असी वो लैके तो बड़े उड़ वैने उच्ची बुलंदी तो खड़ो रहने और असी बड़े खुश हो गए असा बहुत कुछ पा लिया, हालांकि इंसान को कुछ नहीं पता होना। और ऐसा कादिर है कि वो न सिर्फ जानता बल्कि वो खुद अपने दस्ते कुदरत ना बना रहा, उसके हुक्म ना बन रहा होंदा बंदा। ये सब्र हुक्म वो खुद तो सानू सूरत तो शक्ल दे रहा होंदा, कैफ़ा यशा जैसा वो चाहता ऐसा बना देना। ला इलाहा इल्ला हुवल अज़ीज़ुल हकीम, इस वास्ते कोई इबादत का मुस्तहिक नहीं सिवाय उसकी ज़ात दे। वो गालिब भी है, वो दाना भी है, वो हर चीज़ से कादिर भी है, हर चीज़ उसके कब्ज़े कुदरत भी है, और हर चीज़ दे हर राज नू, हर चीज़ दे हर सिफत नू, हर शय दे हर पहलू नू कुल्ली तौर पर जानने वाला भी होवे। लिहाजा वही हर चीज़ नू सवार भी सकता, बिगाड़ भी सकता, हर चीज़ बरकत भी दे सकता, उसनू तबाह भी कर सकता, और जेड़ा ये सारे काम कर सकता इबादत का मुस्तहिक भी वही है जिसकी बड़ाई और अजमत का कोई सानी नहीं, उसे दे सामने इंतहाई तजल्लुल और इंतहाई आजिज़ी का इजहार भी किया जा सकता है। इबादत होती है इंतहाई तजल्लुल का इजहार, इंतहाई आजिज़ी का इजहार। तो जिसकी कुदरत कामला इंतहाई बुलंदियाँ देवे उसे दे सामने इंतहाई तजल्लुल और आजिज़ी का इजहार भी किया जा सकता। वल अज़ीज़ुल हकीम, वो गालिब है और हिकमत वाला है। वल्लज़ी अनज़ल अलैकल किताब, वही अजीम तर मालिक है जिसने आप पे किताब नाज़िल फरमाई। मिन आयातुम मुहकमातुन हुन्ना उम्मुल किताब, उसे कुछ आयात जड़ियां वो मुहकमात यानी उन्होंने मफहूम और मानी सीधे सीधे समझ आ गए ने। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसले बयान फरमाने हर आदमी समझ लेंदा,
ओ मुहकमातन हुन्ना उम्मुल किताब, ओ बुनियादन किताब की। व उखर मुतशाबिहात, कुछ आयात ऐसियां जेड़ियां मुतशाबे जिन्हां दे मफाहीम आदमी समझ नहीं आउंदे, लेकिन उन्हां ते ईमान आना जरूरी है और उन्हां दी तलावत। जैसे अर रहमान वल अर्श इस्तवा, उन इस्तवा अल अर्श की कैफियत में कौन समझे, ये मुतशाबिहात विचों है। अल्लाह करीम ने बयान नहीं फरमाई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो कैफियत बयान नहीं फरमाई। आम आदमी, कोई आदमी भी आलिम होवे या आम होवे, उस मफहूम नू पा नहीं सकता। इस वास्ते इन्हां ते जिस तरह है ईमान आना शर्त है। या यदुल्लाह फौक ऐदीहिम, अल्लाह दा हथ कैसा भई, उन्हां दे हत्थां ते अल्लाह दा हथ है, दस्ते कुदरत कैसा, ये अगो इसनू समझने दी और इसे बहस की जरूरत नहीं। तो अमल्लज़ीन फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन फ़यत्तबिऊन मा तशाबह मिन्हु इब्तिग़ाअ अल फितनत व इब्तिग़ाअ तावील, जिन्हां दे लोकां च कजी और टेढ़ापन आ वैंदा ना दिलां दे, जिन्हां लोकां दे दिलां दे विच कजी आ वैंदी, वो मुतशाबिहात दे पिछे पै वैंदे और उन्हें मुख्तलिफ तावीलां घड़ घड़ के फितना पैदा करदे, लोकां दी गुमराही दा सबब पैदा करदे, फसाद दी बुनियाद रखदे। याद रखो, इंसानी अबदान दा तलाफ, इंसानी जाना दा अतलाफ, लोकां नू कतल करना, लोकां नू मारना, लोकां नू लुटना, लोकां दी आबरू लुटनी, ये भी बहुत बड़ा फितना और बहुत बड़ा फसाद है। लेकिन लोकां दा दीन खराब करना, अकीदा खराब करना, ईमान खराब करना, ये इस जिहड़ा जिस्मानी कतल है उस नालों बहुत बड़ा वड्डा फसाद। अगर किसी का माल लुटिया गया तो उसमें फिर माल मिल भी सकता, किसी को कोई ज़रबा लाइया गई, जख्मी हो गया तो सेहतमंद भी हो सकता, लेकिन जिसका ईमान तबाह हो गया, शायद उसमें तौबा की तौफीक मिले ना मिले, कुफर जा पिया, अल्लाह करीम उस तो कितना नाराज़ हो गया, फिर उसमें कबूल करता नहीं करता। लिहाजा जिन्होंने लोगों ने दिलों च कजी होती है, मतलब है कि दिल बजाय खुद मुकल्लफ है और उसका टेढ़ापन या उसकी रास्ती जी है, ये न सिर्फ इंसान दे ज़ात वास्ते बल्कि दूसरे दे वास्ते भी बड़ी असर और नतीजे पैदा कर दी है। अगर किसी का दिल सीधा, दिल रोशन, ईमान मजबूत है तो हो सकता है कि कितने हज़ारा लोग उस दे नाम मिल के नूरे ईमान ना मुनव्वर हो वजन, या अगर वो मोमिन तो है लेकिन तकाज़ा ईमान पूरा करने रहे, गुनाहगार जिंदगी इख्तियार की थी, उस बंदे दे नाम मिल के वो नेक हो वजन, उन्हों की भलाई हो। इस तरह जिसका दिल टेढ़ा हो गया, दिल च कजी आ गई है, वो अगों लखां जिंदगियां तबाह कर देना, लोगों के ईमान तबाह करदा, फितने पैदा करदा, फसाद पैदा करदा। इस फितने तो मुराद ईमान का फितना, लोगों के ईमान ज़ाया कर देना। और वो एक बंदा फरमाया जिन्हों के दिल टेढ़े हो गए ने, दिल का टेढ़ापन के है, अख टेढ़ी हो जाए ना तो चीज़ होवे होर तो उसमें नज़र होर आउंदी, या पई भी होर मकाम ते होए तो उसमें दूसरे मकाम ते नज़र आउंदी, तो टेढ़ापन या कजी नज़र विच आउंदी। इस तरह जिसले दिल टेढ़ा होंदा तो वो हकायक के अज़ली व अबदी जेड़े अल्लाह की ज़ात और सिफात और अंबिया की सदाकत और किताब की सदाकत के बारे वो उसनों समझ नहीं आउंदे, उसनों वो टेढ़े लगदे, डिंगे लगदे, नामुनासिब लगदे, और वो फिर जड़ियाँ मुहकम आयातन उन्होंने छोड़ के जड़ियाँ आयात मुतशाबिहात उन्होंने पिछे पै वैंदा, समझ आउंदी नहीं उन्होंने, अपनी मर्जी ना तावीलां करदा, इस तरह फितना और फसाद पैदा करदा, गलत तावीलां गढ़ के और लोगों की गुमराही के सबब बनदा। वमा यालमु तावीलहु इल्लल्लाह, मुतशाबिहात दी तावील तो अल्लाह तो बगैर कोई नहीं जानता, अल्लाह जानता, अल्लाह का रसूल जानता, या वर रासिकून फिल इल्म, या वो लोग जानते जेड़े रासिकीन फिल इल्म होंगे, जिन्हां दी दस्तगाह कामिल इल्म ते होंदी, यानी वो लोग जिन्होंने इस्तलाह तसव्वुफ विच फना फिर रसूल आख्या वैंदा कि ज़ाहिरन भी बातनन भी नबी करीम सल्लम दी ज़ात विच फना हो वैंदे, आप दा कामिल और पूरे खुलूस नाल और कामिल इत्तिबा करते, अपनी जिंदगी हुजूर दी गुलामी च वक़फ़ कर देने, वो लोग बतफ़ैल नबी करीम बरकाते नबुव्वत चो, अनवाराते नबुव्वत चो, फैज़ाते नबुव्वत चो, कलब अथर नबी करीम सल्लम दे विचों वो अखज़ कर लेने, वो बंदे जानते जिन्होंने रब जना देना। और एक बड़े यानी मैं अगे भी अर्ज कर चुका कि ये जेडे रासिखून फिल इल्म जेडे अल्लाह के कामिल बंदे
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤਾਵੀਲ ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੱਸੀ ਗੱਲ ਦੂਏ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਾਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੀ ਤਿਲਾਵਤ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਹਕਮਾਤ ਆਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਜ਼ੂਰ ਦੇ ਸਮਝਾਏ ਦੇ ਮੁਤਾबिक ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। और जेड़े रासिखून फिल इल्म वो भी आदे यकूलून आमन्ना बिही कुल्लुम मिन इंदि रब्बिना, वो अगा अपना इन्हां दी तरह जिन्हां दे कुलूब टेढ़े हो चुके हैं उन्हां दी तरह फसाद पैदा नहीं करते, बल्कि आदे ने अल्लाह ए रब्बुल आलमीन ए साडे परवरदिगार सब तेरी तरफों असी सारी किताब नूं अव्वल आखिर मन्ने आ और इस ते असी ईमान ले आउने और इसे ते असी अमल करांगे। वमा यज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, लेकिन नसीहत भी जिन्हां लोगों की अकल सलामत होंदी है उन्होंने ही असर करती, वही कबूल करते हैं। जिन्हां दे दिल टेढ़े हो गए ने, अकल जिहड़ी है दिमाग जिहड़ा है ये एक ऐसी शै है, ऐसा आला दिमाग कि जिस दे नाल वजूद दे तमाम आज़ा जवाहर वाबस्ता सारिਆਂ ਕੋਲੋਂ कम लेना इसका कम है। दिमाग जो हुक्म आउंदा ते आज़ा जवाहर हरकत करते हैं, लेकिन दिमाग दिल दे ताबे, जिहड़ी आरजू दिल चो जन्म लैंदी दिमाग उसकी तामील वास्ते फौरी तौर पर अहकाम जारी करदा। ते जे दिल ही टेढ़े हो गए, दिल का हुक्म ही गलत हो गया, दिल की ख्वाहिश ही गलत हो गई, दिल की आरजू और तमन्ना ही गलत हो गई तो सारा निज़ाम बिगड़ गया। इसी तरह अगर दिल बरकत नबुव्वत ना मुनव्वर हो गया, उसनों फिर रसूख फिल इल्म, उसनों हकीकी इल्म हासिल होया और इल्म की जिहड़ी असल है और जिहड़ा हिदायत का इल्म है, कुर्ब बारी का जिहड़ा इल्म है, हकायक का जिहड़ा इल्म है वो उसनों नसीब होंदा, उसके मुताबिक उसके सारे आज़ा जवारे तो सो नसीहत भी वो हासिल करदा जिसका दिमाग सलामत हो गए। उलिल अलबाब साहिब अकल साहिब खिरद वही हो सकता जिसका दिल सलामत हो गए, उसकी खिरद उसका अकल उसका दिमाग भी सलामत होंदा और ऐसे खुश नसीब लोग ही नसीहत कबूल करते हैं, वरना बदनसीबा दे वस का रोग नहीं होंदा। और वो इस सारे के बावजूद कि रासिखीन फिल इल्म होंदे हैं, बारगाह नबुव्वत दे खुशाचीन होंदे हैं, बरकत नबुव्वत दे अमीन होंदे हैं और हकायक तो अल्लाह उन्होंने बाखबर कर देंदा, इसके बावजूद फिर वो दुआ मंगते हैं रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह सानू जिसले हदायत नसीब फरमा दी है इस तो बाद हुण साडे दिलां टेढ़ापन पैदा न करी, सानू इस हदायत ते कायम रखें। एक कायम रखना भी जिस तरह हदायत देना तेरी अता है उसी तरह हदायत ते कायम रखना भी तेरा इनाम है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना, अल्लाह सानू हदायत नसीब फरमाइया, साडे दिलां नूं डिंगा न करी, टेढ़ा न करी, उन्हां कजी पैदा न करी। वहब लना मिन लदुनका रहमा, और अपनी ज़ात की तरफों अपने खजाने चो साडे ते रहमत अता फरमाई जा। इन्नका अंतल वहाब, कि यकीनन तू ही हिक देने वाला, बाकी सारी मखलूक तो लैन वाली है। इन्नका अंतल वहाब, तेरी हिक ज़ात है जिहड़ी अता करन वाली है, बाकी सारी मखलूक मुहताज है और लैन वाली है। रब्बना इन्नका जामिउन नास लियौमिन ला रैब फीह, ऐ साडे परवरदिगार सानू पक्का यकीन है और पक्की समझ आ गई, गल दा पता लग गया कि तू सारी इंसानियत नूं एक दिन जमा करना जिस दिन दे वकू विच कोई शुबा नहीं। एक दिन यौम जज़ा होना, अव्वल व आखिर सारी मखलूक नूं तू जमा करना और सारे को आमाल दी बाज पुरस होनी है। और तेरा ए वादा तेरिया पहलियां किताबां मौजूद है, तेरे हर नबी हर रसूल ने दस्या तेरा ए वादा, और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और यकीनन अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। सो अल्लाह साढ़े ते रहम फरमा, साढ़े दिलों नूं जिस वेले तू हिदायत नसीब फरमाइए और साढ़े दिलों नूं रास्ती नसीब फरमाइए ते इन्हां नूं रास्ती ते कायम भी रख, ये भी तेरी अता है, ये भी तेरा इनाम है। और एक तेरी ज़ात है जिहड़ी देन वाली है, बाकी ताहतो सरा तो लैके सुरैया तक कायनात के बसीत के अंदर एक तेरी ज़ात के अलावा बाकी जितने वजूद हैं जितनियां ज़ातां वो तेरी बारगाह चो लैन वालियां,
तू अता करने वाला, इस वास्ते साढ़े ते रहम फरमा और हमेशा सानू रहमत और बख्शिश अता करता रहो। और इस गल का भी यकीन है बारे इलाहा, तू एक दिन सारी मखलूक को जमा करना जिस दिन दे क़यामत अदना जे शुबा भी नहीं कि ला रैब फी, जिससे कोई अदना जे शुबे की गुंजाइश भी नहीं। ये वादा तेरा, और इन्नल्लाह ला युखलिफुल मियाद, और अल्लाह अपने वादे के खिलाफ कभी भी नहीं करता। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह